Fine. Komal, good morning. We are already moving with this chapter drainage. We have already covered two river systems. One is the Indus River system, second is the Ganga River system. Right? Before we proceed to the other river system, the other main river system of the Himalayan rivers, let me tell you, you're supposed to make a table, right? पूरा रिवर सिस्टम ऐसे याद करने की जगह आप लोग एक टेबल बनाएं, right? You will make a table in which you are just going to cover all the features of these river systems. I will tell you how you have to make it. चाहे आप इसको horizontal बनाते हैं that is up to you. Right? The columns which are to be made. Right? The system origin, right? जैसे अगर आप इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट्स ओरिजिन इज तिब्बत, राइट? मानसरोवर. Then we will be writing about its length. You can just note it down somewhere. You can note it down somewhere. Length, then states covered. अभी सब एरिया कवर्ड की कुछ states covered लिख लेते हैं, right? उसके बाद last column will be of status of the tributaries. One more column you will make. Special features. Right? अब जैसे हर रिवर सिस्टम का कोई स्पेशल फीचर आपको हो सकता है नहीं मिले. I can give an example like the Ganga river system. So Ganga के लिए ये फाइव स्पेशल फीचर क्या है? Longest river of India. Right? When you are writing about Brahmaputra, you can write the largest river of India. If you are writing about Godavari, you can write it also known as Dakshin Ganga. ऐसे कुछ features जो हैं specially associated हैं उस river system से that you can write. Right? So again, I am saying that every river system will not be having some special features. Right? So you need not to bother about it. Fine. So the bottom line is you have to make these columns, you have to make the table like this so that it will become easy for you people to learn all the river systems. Right? एक ही flow में आपको सारे river system के जो features हैं वो अच्छे से याद हो जाए. Right? So that's why you are supposed to make this table. Right? And this table will be there at the very first page of your chapter. जहाँ पर आप chapter start करेंगे लिखना वहाँ पर पहले table बनाएंगे उसके बाद rest of the things will be there. Right? चलिए तो as I have already said that we have already covered the Ganga river system and the Indus river system. So now the third one क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं Himalayan rivers. We are just covering the Himalayan rivers. Already I have said that these Himalayan rivers, these rivers originate from Himalayas. They are involved in more erosional activities. They have more catchment area. Their areas covered is large. Right? These are perennial. ऐसे काफी features हैं that are associated with the Himalayan rivers. Right? So the first one is your Brahmaputra river system. Brahmaputra river system
इसे हम जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वे कॉल इट द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया in terms of volume, right? In terms of volume, it's the largest river of India. Fine. The other features, इसका origin कहाँ से होता है? Already many times I have explained to you people that Indus River and Brahmaputra River have the common origin. Both these rivers originate from Tibet. The only difference is that the Indus moves to Jammu and Kashmir, whereas this river that moves towards the east and enters India from Arunachal Pradesh. It enters India from Arunachal Pradesh. Right? So anyhow, this river, it flows eastwards parallel to Himalayas. जब हम लोगों ने मैप फिल किया था, वहां हमने क्या चीज ऑब्जर्व की थी कि जब ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, तो ये टिल अरुणाचल प्रदेश हिमालयास के पैरेलल फ्लो करती है और उसके बाद अरुणाचल से जाकर ये इट टेक्स द यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, राइट? And here it is called Dihang. Rivers जो है वो लोकल नाम से जाना जाता है. Here as mentioned it is known as Dihang. और उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आके कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती हैं. प्लीज अंडरलाइन दोज ट्रिब्यूटरीज विच आर दिबांग, लोहित, Canela and many other tributaries, right? ये सारी tributaries इसको ज्वाइन करती हैं अराउंड असम के आसपास. और यहाँ पर ही जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है उसके बाद असम में जाती है, तब जाकर इस रिवर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, राइट? तिब्बत में जब ये रिवर ओरिजिनेट होती है then it carries a very smaller volume of water. It carries very smaller volume of water. Reason is कि जो तिब्बत है that is quite a dry area, right? Cold है और dry area है. और जब ये एरिया में जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, then it passes through the area of heavy rainfall, right? तो जब ये heavy rainfall वाले एरिया से पास करती है then it receives more volume of water, right? और because of these monsoons, जब ये monsoon season आते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है it you can say it results in floods, especially असम में या मेघालय, ये जो एरियाज है वहां पर ये जो रिवर है इसके कारण बहुत ज्यादा फ्लड्स भी आते हैं. एंड not only floods but also these floods that leads to lot of destruction and every year it happens. हर साल यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड्स जो हैं वो आते हैं, राइट? और उस फ्लड्स के कारण बहुत ज्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान होता है, राइट? लेकिन उससे ये एक बेनिफिट होता है कि जब फ्लड वाटर जब रिट्रीट करता है, राइट? जब फ्लड्स आती है ना तो पानी सारा इकट्ठा हो जाता है और यही जब फ्लड्स या बारिश रुक जाती है, फ्लड का पानी जब ट्रीट करता है तो वहां पर एक छोटे छोटे कुछ आइलैंड से बन जाते हैं दैट आर मेड अप ऑफ द सिल्ट दैट आर ब्रॉट बाय दीज रिवर्स, राइट? और यहाँ पर सिल्ट के कारण ही जो रिवर्स हैं दैट आर further divided into the channels, right? और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये और भी कई नामों से जानी जाती है. लोकल नेम जो है तिब्बत में इट इज नोन एज ज़ांगपो. द रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इट इज नोन एज ज़ांगपो. और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, नोन एज जमुना इन Bangladesh, right? So different local names हैं in rivers के. So anyhow
this river as mentioned, इतना ज्यादा अपने साथ जब silt इकट्ठा कर लेती है, that leads to some a few of the riverine islands, right? So ये हमारी तीन rivers major जो हैं, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. These are the Himalayan rivers, right? Now we will move to the peninsular rivers, right? After this, peninsular rivers. Peninsular rivers कौन सी हैं? That originates. The peninsular rivers, they originate in the peninsular area, Western Ghats या Eastern Ghats, right? So most of these rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, right? और on the other side जो वेस्टर्न घाट्स में ड्रेन होती हैं, जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, नर्मदा एंड काफी ज्यादा मेजर टू रिवर्स, राइट? वेयर एज जो ईस्टर्न घाट में या बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, दैट आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. These are also known as the eastward या east flowing rivers, whereas जो नर्मदा और तापी हैं वो हैं west flowing rivers, right? So ये जो east flowing rivers हैं, they form the deltas, right? Whereas the west flowing rivers, they form the estuaries, right? ये एक तरह के landforms होते हैं, which I will show it to you people later on, right? और ये जो rivers हैं, जो peninsular rivers हैं, इनका जो drainage system है, the drainage system of the peninsular rivers is quite smaller in size as compared to the Himalayan rivers, right? As compared to Himalayan rivers, ये जो peninsular rivers का drainage system है वो कम होता है, और ये नॉन पेरिनियल भी हैं, और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जहाँ पर नॉन मानसून एरियाज में जो पानी है या जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाता है, राइट? सो हियर इन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, start with the see whatever facts are there, have to underline those facts, right? जितने भी facts आ रहे हैं वो आपने underline, right? The origin of Narmada river is the मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स हैं जहां से जो नर्मदा रिवर है ये रिचनेट होती है. गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो लोकल जो वाटर सप्लाई होती है वो इसी रिवर से, जो वाटर सप्लाई है गुजरात में जो लोगों में पानी आता है नर्मदा का ही पानी, और जो ये वाटर सप्लाई सर्विसेज हैं इन एरियाज की, दैट इज वेरी वेरी गुड. कि गुजरात में स्पेशली कहने कोई ड्राई एरिया है, लेकिन अब ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो पब्लिक सिस्टम है, दैट इज वेरी वेरी गुड इन गुजरात, राइट? एनी हाउ इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट. जब आप मैप को रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट? एंड इट ड्रेन्स इन अरेबियन सी, राइट? ये जो नर्मदा रिवर है, बिकॉज प्लेट्यू रीजन है सारा का सारा ये, तो इट फॉर्म्स मेनी ऑफ द यू कैन से लैंड फॉर्म्स व्हिच आर ऑलवेज द टूरिस्ट अट्रैक्शन, राइट? और यहाँ पर कुछ ऐसे फॉल्स भी हैं, वाटरफॉल्स भी हैं which are formed by this नर्मदा रिवर, राइट? और नर्मदा रिवर जो है, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं दैट आर वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत बड़ी. जैसे गंगा रिवर का हमने पढ़ा था, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बड़ी लॉन्ग, मतलब बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज. whereas पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर आल्सो वेरी शॉर्ट, राइट? छोटे रिवर्स हैं, स्मॉलर हैं, जो इसे ज्वाइन करते, राइट? और सो एज सच ये जो नर्मदा रिवर है, इट कवर्स द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और गुजरात से फिर ये
अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है, राइट। देन कम्स द तापी, क्योंकि पहले हम लोग वेस्ट फ्लोइंग भी कर लेंगे तो आपको कन्वीनियंट रहेगा, हम लोग वेस्ट फ्लोइंग, राइट। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपके नोट्स में क्वेश्चन होगा द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। एक डिफरेंस हम लोग करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द पेनिनसुला एंड द हिमालयन रिवर्स, एक डिफरेंस हम लोग करेंगे द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। सो ये डिफरेंस जो है ये आप लोगों को काफी हद तक क्लियर होना चाहिए। एनी हाउ द तापी राइजेस इन सतपुड़ा रेंज, जो भी that is there in Madhya Pradesh, right? आपको रिकॉल हो रहा है ये द सतपुड़ा रीजन, बेतुल डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन। आप लोगों ने क्लास 7 में आपका एक चैप्टर था अबाउट दैट तवा मत्स्य संघ एंड ऑल, वहां पर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि रिवर जो है that originates from the Betul district which is there in Madhya Pradesh, right? So वहां से ये originate होती है और ये जो रिवर है it flows parallel to नर्मदा। जब मैप आप लोगों ने फिल किया था तो आपने देखा था ऊपर नर्मदा हमने मार्क की थी, उसके बिल्कुल पैरेलल नीचे हम लोगों ने तापी मार्क, राइट। सो एनी हाउ ये उसके पैरेलल चलती है, लेकिन नर्मदा रिवर जो है दैट इज लॉन्गर वेयर एज तापी रिवर इज अ शॉर्टर, राइट। वो लॉन्गर है, ये शॉर्टर है एंड इट कवर्स द एरिया ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड कवर करती है गुजरात, मध्य प्रदेश एंड, राइट, whereas नर्मदा जो है it covers मध्य प्रदेश एंड गुजरात, राइट। सो ऐसे ही जो अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी वो कुछ कॉमन स्टेट्स हैं जिसको ये ड्रेन करते हैं, राइट। सो दीज रिवर्स जो वेस्ट फ्लोइंग है, टू मेजर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर वन एंड दिस इज तापी एंड नर्मदा। और इसके बाद इफ वी मूव टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। तो इसके बाद अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे देन विल कम टू मेनी अदर फीचर्स ऑफ द रिवर्स। तो इसमें हम लोग पहले एक ले लेते हैं गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है इसका से कि साइज प्लस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, right, because of the volume of water and because of its size it is often sometimes known as the Dakshin Ganga also, right। इसकी लेंथ जो है it is around 1500, गोदावरी की लेंथ जो है that is around 1500 kilometer, right। it originates from Maharashtra and it drains in Bay of Bengal। अब आपने ये नोट किया कि जो ईस्ट फ्लोइंग सॉरी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी वो कहां से ओरिजिनेट हो रही थी, सेंट्रल इंडिया से। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दैट आर ओरिजिनेटिंग ईदर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया और फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, राइट। सो गोदावरी जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट, एंड इट ड्रेन्स इन Bay of Bengal, right? Please underline few of the features that it covers the area about 1500 kilometers length, right, and it covers Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh, right। so ये ड्रेन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले ये कुछ एरियाज को कवर करती है और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं दैट आल्सो यू आर सपोज टू अंडरलाइन, it's Puna, Wardha, Pranhit, Mansha, Venganga and Panganga, right। so anyhow इसकी जो लेंथ और एरिया जितना ये कवर करती है कंपेयर टू अदर पेनिनसुलर रिवर्स जितनी इसकी लेंथ है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज द गोदावरी, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है उसमें लार्जेस्ट जो है दैट इज द गोदावरी। सो प्लीज अंडरलाइन दैट इट इज आल्सो एज द दक्षिण गंगा।
right? So in tomorrow's class, we will cover the other river systems like Mahanadi hai, Krishna hai, Kaveri.